morning, dear student. Dear students, today I will choose example number 9 from amalgamations. Dear students, I read the information related to SAIL and Sittal Limited. The following are the balance sheet of SAIL Limited and Sittal Limited as on 31st March 2012. Liabilities SAIL Limited and Sittal Limited 10% preference share each of rupees 10, 8 lakhs and 4 lakhs. Equity share each share of rupees 10, 12 lakhs and 12 lakhs. Security premium SAIL Limited dash and Sittal Limited 2 lakhs. General reserve SAIL Limited 6 lakhs, Sittal Limited dash. 14% debenture 4 lakhs and 2 lakhs. Creditors 5 lakhs and 4 lakhs. Provident fund 3 lakhs and 2 lakhs. Now asset sides goodwill 4 lakhs dash. Fixed assets 18 lakhs and 10 lakhs. Stock 6 lakhs 60,000 and 6 lakhs. Debtors 4 lakh 80,000 3 lakhs. Prepaid expense 40,000 and 60,000. Cash bank 3 lakh 60,000 4 lakhs. Preliminary expense 60,000 40,000. Profit and loss account dash 2 lakhs. Total both side of SAIL Limited 38 lakhs and Sittal Limited 26 lakhs. Now additional information, it would decide to amalgamate both the companies and form the Subhas Limited with rupees 50 lakhs authorized capital of rupees 10 each. So dear students, the authorized capital of Subhas Limited is 50 lakhs and each share is rupees 10, means total number of share 50 lakhs upon 10 is equal to 5 lakhs. The condition of amalgamations are as under. So for SAIL Limited, number one, equity shareholders were given for equity share at rupees 12 each of Subhas Limited against 3 equity share. Means those shareholders who have SAIL Limited 3 shares, we offer 4 shares, 12 rupees. The face value is 10 rupees, so 2 rupees is a premium. Preference holders were given 5 equity shares at rupees 12 each of Subhas Limited against 4 preference shares. Means if you offer 5 equity shares against preference shares, same value 10 rupees and 2 rupees premium. The 14% debenture holders will get 50% premium by allotting debentures each of rupees 100 bearing interest at 10% per annum at 8 point discount. तो फ्रेंड इसका मतलब क्या होता है कि हमें जो हमारे यहाँ पे 14% डिबेंचर है उनको पहले क्या देना है, 15% प्रीमियम देना है. उसके बाद हमें 100 रुपीज के फेस वैल्यू के जो डिबेंचर्स है जिसकी परसेंटेज की 10%, उसे हमें 8% डिस्काउंट के साथ ऑफर करना है इसको सेल लिमिटेड के डिबेंचर होल्डर्स को. The new company will give rupees 80,000 in cash. The SAIL Limited will pay the amount of provident fund to the workers before amalgamations. मीन्स के यहाँ पे जो हमारा पीएफ का जो लाइबिलिटीज है वो हम इसको पे करते हैं कहाँ पे, बिफोर अमलगेशंस. The new company will purchase all the assets and liabilities of the SAIL Limited with the following adjustment. The book value of fixed assets is 60% of its market value. मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ पे जो दिखाई है वो सिर्फ 60% ही है उसकी मार्केट वैल्यू. हमें क्या करना है, 100% उसको करना है. वैल्यू फिक्स एसेट्स आर टू बी वैल्यू एट बुक वैल्यू, और यहाँ पे क्या है उसकी बुक वैल्यू, हमें मार्केट वैल्यू कर रही है. द स्टॉक इज टू बी वैल्यूड at rupees 5 lakh for 10% bad debt reserve is to be provided on debtors. The other assets and liabilities are to be taken at book value. Now for Sittal Limited, the fixed assets are to be valued 40% more. The stock is to be valued at rupees 5 lakh 40,000. Other assets and liabilities are to be taken at book value. Goodwill is to be taken at 2 lakhs. 10% bad debt reserve is to provide on debtors. Number 6, 40% debentures were to be allot such number of debenture in the new company bearing 10% interest per annum so that they can earn same amount of interest. The new company will issue 1,60,000 equity share at rupees 12 each and the remaining purchase price is to be paid by cash. The new company has issued the remaining equity share to public at 20% premium. From the above information, pass necessary general entries in the books of Subhas Limited and also prepare balance sheet after amalgamations. So friends, now we start our
calculation. First we find out SAIL limited. Okay, we make necessary calculation for SAIL limited, and then after we make the necessary calculation to for Sital limited, and then after we prepare the balance sheet after the amalgamations. So friends, you can see here, first we find out purchase considerations. So first we make the necessary calculations. First we find out number of new equity shares. So friends, here we offer 4 equity share against 3 old equity shares. So we make the calculation, 3 old equity share is equal to 4 new equity share. So our total number of equity share is 12 lakhs upon 10 is in equal to 1,20,000. So 1,20,000 question mark. So 4 multiply 1,20,000 upon 3 is equal to 1,60,000 seats. Now preference shares. So we offer 5 equity share against 4 preference shares. So 4 preference shares is equal to 5 equity share. So our total number of preference shares is 80,000. So now equity number of equity share is question mark. So we make the calculation, 5 multiply 80,000 upon 4. The answer is 1 lakh equity share. Now we find out purchase consideration. So friends, you can see in this example, both the example there is no given any purchase price. Okay, so first we find out, then after we make necessary calculations. So equity share capital. So here friend, you can see 1,60,000 plus 1 lakh, 2,60,000 multiplied 10 is 26 lakhs. Now security premium, because our share face value is 10 rupees but we offer 12, means 2 rupees is a premium. So security premium is equal to 2,60,000 multiplied 2 is equal to 5,60,000. And you can see here the new company will give rupees 8,000 in cash. So the cash is 18 lakhs. Now make the total purchase price 32 lakhs. 2 lakh 66 26 lakhs plus 5 lakh 60,000 plus 80,000, total 32 lakhs. Now we find out net assets, but we make the necessary calculations. So friends, the first adjustment, the book value of fixed assets is 60% of its market value. Fixed assets are to be valued at book value. So friends, first we make necessary calculation. So here you can see fixed assets. So I make comparison. So book value is equal to market value. Here given the balance sheet value is book value, so we find out market value. Okay, so 60 is equal to 100, so 18 lakhs is equal to question mark. The answer is 30 lakhs. Now again we calculation 10 percentage debentures. So our old debenture is 14 percentage, sorry 14 percentage friends. Okay, so 14% debentures. So dear students, new 10% debentures, 14% old debentures 4 lakhs plus 15% premium 60,000. Now total 4 lakh 60,000. Okay, you understand this adjustment. The 40% debentures holders will get 50% premium by allotting debentures each of rupees. So here is the first sentence. Okay, then allotting debentures each of rupees 100 bearing interest at 10% per annum at 8% discount. उसके बाद क्या बोला है कि हम जो डिबेंचर को इश्यू कर रहे हैं उनको पर एनम 10% डिबेंचर मिलना चाहिए और इंटरेस्ट मिलना चाहिए, और हम उसको कैसे ऑफर कर रहे हैं 8% डिस्काउंट के साथ. तो हमें टोटल उसकी वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी, मींस कि हमने कितने पैसों का हमने डिबेंचर्स इश्यू किया हुआ है अपनी ओल्ड कंपनी में और न्यू कंपनी में. ओके, तो हम सबसे पहले इसको फाइंड आउट करते हैं. सबसे पहले हम इसका प्रीमियम कैलकुलेट कर लेते हैं. तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका प्रीमियम कैलकुलेट कर लिया. तो 4 लैक्स का 50% कितना हुआ 60,000, तो टोटल कितना होगा 60,000. अब हमारे जो शेयर्स थे वो हमने कैसे 8% डिस्काउंट के साथ उसको ऑफर कर रहे हैं. तो सबसे पहले हमें ये जो 4 लैक्स 60,000 है, तो हमने क्या सबसे पहले उसका हमें क्या करना है, उसकी रियल वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी कि हमने कितने पैसे का उनको शेयर डिबेंचर ऑफर किया है. तो अभी 8% डिस्काउंट हम कैलकुलेट करते हैं तो उसकी 100 रुपीज़ में उसकी कितनी वैल्यू होती है. तो 92 रुपीज़, 100 में से 8 रुपीज़ डिस्काउंट है तो 92 रुपीज़ हुआ. तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी 100, तो अभी 4 लैक्स 60,000 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 5 लैक्स होगी. अब उसमें से 8% डिस्काउंट हम रिमूव कर दें, इसको डिडक्ट करें तो कितना आएगा 5 लैक्स का 8% 40,000. तो हमारी ओरिजिनल वैल्यू कितनी होगी 4 लैक्स 60,000. मीन्स कि हम टोटल
जो हमारे डिबेंचर है वो 5 लाख के है, ऑफर कर रहे हैं। पहले इतने गए थे, उसमें प्रीमियम इतना ऐड किया तो उतने हो गए। हम 8% डिस्काउंट दे रहे हैं। ओके, तो हमें डिस्काउंट से पहले उसकी फेस वैल्यू कितनी थी वो फाइंड आउट करनी होगी। तो हमने फाइंड आउट कर ली 5 लैक्स। अब उसमें से हमने डिस्काउंट बात कर दिया, तो हम एक्चुअली हमारे अभी मार्केट में जो डिबेंचर उसकी वैल्यू कितनी है, तो 4,60,000 है। तो ये हमारी वैल्यू हो गई। अब चलते हैं हम नेट एसेट्स के तरफ। तो नेट एसेट्स, तो एसेट्स फिक्स एसेट्स 30 लैक्स, स्टॉक 6,60,000, डेटर्स 4,80,000 है। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि उस पर हमें 10% बैड डेब्ट रिजर्व जो है वो हमें अप्लाई करना है। ओके, तो हमने यहाँ पे उसको प्रोवाइड कर दिया 10%। तो हमारा 48,000 हो गया, तभी हो गए हमारे डेटर्स 4,32,000। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस 40,000, कैश और बैंक 3,60,000। तो हमारा टोटल हो गया 44,92,000। ओके, अब उसके बाद करते हैं लाइबिलिटीज की। तो लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स हमारे जो है वो 5 लैक्स है, यहाँ पे हमें दिखाया गया है 5 लैक्स। उसके बाद पीएफ है हमारा 3 लैक्स, तो हमने वो पीएफ भी ले लिया 3 लैक्स। ओके, अब बात करते हैं 50% डिबेंचर्स। तो हमारे जो डिबेंचर्स थे 10% के डिबेंचर्स हमारे जो, तो यहाँ पे हमारे 10% के डिबेंचर हो गए 4,60,000, क्योंकि हमें यहाँ पे उसकी जो वैल्यू मार्केट में अभी मीन्स कि अभी हमारा जो लाइबिलिटीज है वही अमाउंट हमें यहाँ पे दिखानी है। तो इसका टोटल हो गया 12,60,000। तो अब हमारी नेट एसेट्स इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो 44,92,000 माइनस 12,60,000, तो हमारी नेट एसेट्स हो गई 32,32,000। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जो हमारा जो कंपनी है उसमें अब गुडविल है और या कैपिटल रिजर्व है। तो चलते हैं हमारे पहले स्टेप पे। यहाँ पे देखिए स्टेप पर हमारा क्या था, परचेज प्राइस, तो वो कितनी है 32 लैक्स। और हमारी नेट एसेट्स कितनी आई 32,32,000। मीन्स कि यहाँ पे हमारी जो नेट एसेट्स है उसकी वैल्यू ज्यादा है किससे, तो हमारी परचेज प्राइस से। तो कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू नेट एसेट्स माइनस परचेज प्राइस। तो 32 लैक्स 32,000 माइनस 32 लैक्स, यानी कि हमारी कैपिटल रिजर्व कितनी हो गई 32,000। ओके, अब हम चलते हैं कैपिटल रिजर्व की तरफ। तो कैपिटल रिजर्व, सॉरी, हम चलते हैं अब शीतल लिमिटेड के तरफ। तो शीतल लिमिटेड में अभी हमें कौन सी मेथड से एग्जांपल कैलकुलेट करना है, तो नेट एसेट्स मेथड से हमें वो एग्जांपल कैलकुलेट करना है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले थोड़ी सी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं जो हमें आगे एग्जांपल कैलकुलेट करने में मदद मिलेगी उससे। तो सबसे पहले फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स हमको यहाँ पे बोला गया था कि हमें 40% ज़्यादा उनको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखो फिर से मैंने कैलकुलेशन किया कि अगर बुक वैल्यू 100 हो तो मार्केट वैल्यू कितनी हो जाइए 140। तो हमारे पास कितनी है 10 लैक्स है, तो उसकी कितनी हो जाइए 14 लैक्स उसकी जो है वो वैल्यू होगी। 140 मल्टीप्लाई 10 लैक्स अपॉन 100, तो उसकी वैल्यू कितना आएगी 14 लैक्स। उसके बाद डिबेंचर्स के बारे में कुछ बोला गया था कि भाई डिबेंचर्स हमें इस तरह से देना है ताकि जो पुराने डिबेंचर होल्डर्स है उनको इंटरेस्ट का लॉस ना हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो हमारे पुराने डिबेंचर्स है उन पे हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें वो जो बोलते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ओल्ड 41 डिबेंचर्स, तो 40 मल्टीप्लाई 2 लैक्स अपॉन 100 यानी कि 28,000। तो 28,000 उसका क्या हो गया, इंटरेस्ट आ गया। अब इसी की मदद से हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे हमें कितना इंटरेस्ट है 10% इंटरेस्ट देना है। तो हम इक्वेशन बनाते हैं यहाँ पे कि अगर 10% 10 रुपीज इंटरेस्ट हो तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कि हम अगर 10 रुपीज उसका इंटरेस्ट हो तो उसकी वैल्यू होगी 100। तो अभी 28,000 अगर उसका इंटरेस्ट होगा तो वैल्यू कितनी होगी, तो 28,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 10, तो 2,80,000। यानी कि हम जो शीतल लिमिटेड के जो डिबेंचर होल्डर्स थे पहले 2 लैक्स, अब वो बढ़कर कितने हो गए 2,80,000 हो गए। ओके फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं हम आगे की कैलकुलेशन पे। तब शीतल लिमिटेड के हम नेट एसेट्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो गुडविल 2 लैक्स क्यों यहाँ पे मैंने लिखी है, तो समझ लीजिए हमें यहाँ पे ऑलरेडी बोला गया है कि यहाँ पे कि गुडविल इज टू बी टेकन एट ₹2 लैक्स। हमें यहाँ पे बोला गया है एडजस्टमेंट में, इसीलिए मैंने यहाँ पे उसको एसेट्स में यहाँ पे उसको मैंने लिखा है। फिक्स एसेट्स हमने फाइंड आउट किया 40 लैक्स। स्टॉक की वैल्यू भी यहाँ पे बोली गई है, तो भाई यू वैल्यू स्टॉक एट 5,40,000। तो हमें यहाँ पे 5,40,000 न्यू वैल्यूज की लेनी है। उसके बाद डेटर्स हमारे 3 लैक्स, उस पर 10% बैड डेब्ट्स रिजर्व, तो 30,000, यानी कि हमारे अब डेटर्स कितने हो गए 2,70,000।
उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस 60,000 और कैश और बैंक 4 लाख, टोटल हो गया 28,70,000। अब बात करते हैं हम लायबिलिटीज की। तो यहाँ पे 10% डिबेंचर्स 2,80,000 हमने अभी फाइंड आउट कर लिए, क्रेडिटर्स 4 लाख और पीएफ 2 लाख, टोटल हो गया हमारा 8,80,000। तो अब नेट एसेट्स इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, तो 28,70,000 माइनस 8,80,000 यानी कि नेट एसेट्स और परचेज प्राइस कितनी हो गई 90,90,000। क्यों यहाँ पे हो गई, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ भी बोला गया नहीं है, हमें रिमेनिंग कैश फाइंड आउट करनी है। इसीलिए जो नेट और नेट एसेट मेथड में मैंने आपको बताया था कि जो कि आपकी नेट एसेट्स आएगी वही आपकी परचेज प्राइस कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पे कैश कितनी हमें पता नहीं है, इसीलिए अब नेट एसेट्स ही हमारी परचेज प्राइस कहलाएगी। तो हम परचेज कंसिडरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया, हमारा परचेज प्राइस लिख दिया सबसे पहले 90,90,000। उसके बाद मैंने क्या किया, अब यहाँ पे मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल लिख दिया जो 1,60,000 थे। ओके, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वो जो बोले वो कोई ऐसा है नहीं, डायरेक्टली यहाँ पे हमें बोला गया है कि हम 1,60,000 जो है कि हम 1,60,000 इक्विटी शेयर उसको ऑफर कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली वो लिख दिया यहाँ पे 1,60,000 शेयर मल्टीप्लाई 10 यानी कि 16 लैक्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम 1,60,000 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 3,20,000। अब इन दोनों का टोटल 16 लैक्स प्लस 3,20,000 मीन्स 90,20,000। अब हमारी परचेज प्राइस कितनी है 90,90,000। तो अब बाकी क्या रहा कैश, तो कैश कितनी हो जाएगी हमारी 70,000। तो 90,90,000 में से फर्स्ट और सेकंड का टोटल करके हमें क्या करना है डिडक्ट करना है, और जो डिफरेंस आएगा वो हमारी रिमेनिंग कैश कहलाएगी। ओके, उसके बाद एक पॉइंट था यहाँ पे फ्रेंड्स देख लीजिए आप, कि हमें यहाँ पे बोला गया था कि भाई द न्यू yes the new company has issued the remaining equity share to public at 20% premium। तो बाकी के जो शेयर है वो हमें अब फाइंड आउट करने हैं कि हम कितने बाकी रहे, हमने बिजनेस जो परचेज करने थे साई लिमिटेड और शीतल लिमिटेड, उनको परचेज प्राइस में हमने जो शेयर्स ऑफर कर दिए, अब वो सब देने के बाद अब हमारे पास कितने शेयर रहते हैं, तो उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, तो हमारी ऑथराइज कैपिटल कितनी थी 50 लैक्स, अब अपॉन 10 यानी कि 5 लैक्स। ओके, अब टोटल सेल्स कितने हो गए हमारे 5 लाख। अब परचेज तो सेल को हमने कितने दिए 2,60,000 और शीतल को 1,60,000, टोटल हो गया 4,20,000। अब रिमेनिंग शेयर कितने रहे हमारे 80,000। ओके, तो शेयर कैपिटल 80,000 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 8 लाख और सिक्योरिटी प्रीमियम 80,000 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 1,60,000। ये टोटल हमें नई कैश कितनी मिलेगी 90 लाख 9,60,000। आप देखो यहाँ पे 10 रुपीज की फेस वैल्यू वो सब में फिक्स रहती है यहाँ पे, और 20% प्रीमियम यानी कि 10 रुपीज का 20% यानी कि 2 रुपीज, तो हो गया यहाँ पे 2 रुपीज। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की, बैलेंस शीट, सुभाष लिमिटेड का बैलेंस शीट आफ्टर अमलगेशंस। ओके, तो सबसे पहले हम चलते हैं लायबिलिटीज पे। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल मैंने यहाँ पे पूरे की पूरे शेयर लिख दिए 5 लैक्स मल्टीप्लाई 10 अपॉन 50 लैक्स, क्योंकि हमने देखो क्या किया, तो 2,60,000 शेयर हमने किसको दिए सेल को दिए, 1,60,000 शेयर किसको दिए हमने शीतल को दिए, और बाकी के जो 80,000 शेयर बचे थे हमने क्या किया पब्लिक को दे दिए। तो हमारे पूरे शेयर जो थे वो मार्केट में अब चले गए, यानी कि हमारी जो पूरी शेयर कैपिटल वो अभी मार्केट में हमारे शेयर चले गए, उसकी पूरी वैल्यू में मिल गई, इसलिए हमने बैलेंस शीट में पूरे के पूरे शेयर दिखा है। सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सही बात है, हमने सब जितने भी शेयर्स ऑफर किए सब में 2 रुपीज का प्रीमियम हमने दिया है, तो इसीलिए 5 लैक्स मल्टीप्लाई 2 यानी कि 10 लैक्स। उसके बाद 10% डिबेंचर सेल लिमिटेड 5 लैक्स, यहाँ पे मैंने क्या किया है उसकी वैल्यू यहाँ पे हमने लिखी थी 4,60,000। ओके, लेकिन आप सबको पता है कि हम जब भी बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसकी पूरे की पूरी वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं, उसके बाद उसका जो डिस्काउंट होता है वो हम यहाँ पे दिखाते हैं। तो आप देखो मैंने यहाँ पे डिबेंचर डिस्काउंट दिखाया 40,000, यहाँ पे 5 लैक्स और 40,000 क्रॉस एंट्री करेंगे आप तो 4,60,000 हो जाएगा। तो आपको भी क्या करना है, अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल कोई भी एडजस्टमेंट होता है या ऐसी भी कोई भी पर्टिकुलर्स होती है आपके एग्जाम्पल में और डिबेंचर्स के रिलेटेड है और हम डिस्काउंट के साथ उसको ऑफर कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे बैलेंस शीट पे उसकी पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पे दिखानी है, और डिस्काउंट जो हमें एसेट्स की साइड वो दिखा देना, क्योंकि ये 56 एसेट्स है हमारे इसीलिए। उसके बाद 10% डिबेंचर्स शीतल लिमिटेड 2,80,000, क्रेडिटर्स
सेल प्लस शीतल 9 lakhs और पीएफ ओनली फॉर किसका आएगा, हमारे शीतल लिमिटेड का 2 lakhs, क्योंकि आपको पता होगा, आप देख लीजिए यहाँ पे हमें बोला गया है द सेल लिमिटेड विल पे द अमाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड टू द वर्कर्स बिफोर अमलगेशन, यानी कि हमने पीएफ अपना जो था 3 lakhs उसको पे कर दिया है, इसीलिए हम यहाँ पे अब बैलेंस शीट में उसको दिखाएंगे नहीं। तो सिर्फ शीतल लिमिटेड का पीएफ आएगा 2 lakhs। ओके, अब जो बात करते हैं हम एसेट साइड की, तो गुडविल तो 2 lakhs का किसकी है, शीतल लिमिटेड, उसमें से कैपिटल रिजर्व हम क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में बोला था कि गुडविल और कैपिटल रिजर्व दोनों में से जिसकी अमाउंट ज्यादा हो उसमें छोटी अमाउंट को डिडक्ट करना है। तो डिडक्ट करने के बाद कितना आएगा हमारे यहाँ पे, हमारी कैपिटल रिजर्व कितनी है 32,000, यानी कि 1,68,000। फिक्स एसेट्स तो सेल प्लस शीतल 44 lakhs, स्टॉक सेल प्लस शीतल 12 lakhs, डेटर्स सेल प्लस शीतल 7,02,000, प्रीपेड एक्सपेंस सेल प्लस शीतल 1 lakhs, डिबेंचर डिस्काउंट 40,000, डिफरेंस आएगा 12,70,000, वो आपका कहलाएगा कैश। तो वो कैश कैसे आता है हमें, हम देख लेते हैं कि सबसे पहले न्यू कैश। ओके, तो सबसे पहले शीतल का कितना था 60,000, अब उसका ओरिजिनली था, यहाँ पे देख लीजिए आप, पहले उसके बैलेंस शीट कितनी थी, बैलेंस बैंक बैलेंस कितना था 3,60,000, लेकिन मैंने यहाँ पे कितना लिखा है सिर्फ 60,000। तो वो क्यों लिखा है मैं आपको दिखा दूं, बता दूं, क्योंकि हमने 3 lakhs क्या किया वहां पे कर दिया पीएफ, तो अब हमारे पास कितना रहा 60,000, और शीतल का 4 lakhs, यानी कि 4,60,000 प्लस हमने न्यू शेयर जो भी पब्लिक को दिए थे 9,60,000, तो 9,60,000 यानी कि 14,20,000। उसके बाद परचेज प्राइस में हमने सेल को 80,000 कैश दिया और शीतल को 70,000 यानी कि 1,50,000, तब हमारे पास कितना कैश रहा 12,70,000। फ्रेंड्स, आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा, और आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि घर पे भी आप एक बार फिर से इसको कैलकुलेट कर लें ताकि आपको पूरा एग्जांपल समझ में आ जाए। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद।